کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ دادو میں سیوریج کا پانی تاریخی قبرستان میں داخل، قبریں مسمار ہونے لگی، قبرستان میں آوارہ کتوں کی بھی بھرمار، فاتح خانی کے لیے آنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا، شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ خیرپور میں نومنتخب ضلعی چیئرمین شہریار خان وسان کی کامیابی کا جشن، کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے، نومنتخب ضلعی چیئرمین کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں تعلیم، صحت اور عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ پشاور اور چارسدہ میں سرچ آپریشن، 7 اشتہاریوں سمیت 67 مشتبہ افراد گرفتار افراد میں افغان باشندے بھی شامل، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ کوئٹہ میں اسپتال میں زیر علاج مزید 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق، رواں سال بلوچستان میں 12 افراد کانگو وائرس سے ہلاک ہوئے، صوبے میں کانگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ مظفر گڑھ میں آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری، مطالبات منظور نہ ہوئے تو لاہور جا کر احتجاج کریں گے، مظاہرین نے گرفتار رہنماؤں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ رحیم یار خان میں ملزم کی تلاش کے لیے لاہور پولیس کا ایک اور گھر پر چھاپا، مطلوبہ شخص 25 سال پہلے علاقہ چھوڑ چکا ہے، اہل علاقہ مبینہ پولیس گردی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بابرا کی جانب سے اوور بلنگ کسانوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے، پاک پتن میں اوور بلنگ کے خلاف کسان سراپا احتجاج بن گئے، مظاہرین نے درست بل نہ بھیجنے تک ادائیگی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور عید قربان کی آمد، جلال پور بھٹیاں میں مویشی منڈی سج گئی، پارکنگ سمیت دیگر بنیادی سہولیات میسر نہ آنے پر عوام کو مشکلات کا سامنا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے۔ دادو کے تاریخی قبرستان میں سیوریج کا گندا پانی کھڑا رہنے سے قبریں مسمار ہونے لگی ہیں، جبکہ قبروں پر فاتح خانی کے لیے آنے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دادو شہر کا تاریخی قبرستان جو ہی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سمیت تاریخی قبرستان میں عرصہ دراز سے سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہے، جس کے باعث قبریں مسمار ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ قبرستان میں آوارہ کتوں کی بھی بھرمار ہے، جو کہ فاتح خانی کے لیے آنے والے شہریوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اب تک پاگل کتوں کے کاٹنے سے 30 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پورا شہر سیلابی صورتحال کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ خیرپور کے نومنتخب ضلع چیئرمین شہریار خان وسان کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، پینے کا پانی اور سڑکیں بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ خیرپور میں نومنتخب ضلع چیئرمین شہریار خان وسان کی کامیابی کا جشن منایا گیا اور کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نومنتخب ضلع چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ خیرپور کے عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے اور ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین نے انہیں جو ذمہ داری سونپی ہے اسے وہ احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیم، صحت اور عوام کو پینے کے پانی سمیت فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر اینٹی نارکوٹکس برہان خان چانڈیو کا یہ کہنا ہے کہ منشیات کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ لاڑکانہ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اینٹی نارکوٹکس برہان چانڈیو کا یہ کہنا تھا کہ وہ منشیات پکڑی جاتی ہیں اس کو تلف کرنے اور ضائع کرنے کے عمل کو شفاف بنائیں گے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کی جانب سے میڈیا ہاؤسز پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، ملک کے خلاف نعرے لگانے والا ملک دشمن ہے۔
सूबाई वजीर ने कहा कि पनामा लीक्स के बारे में उनका मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। उनका यह मज़ीद कहना था कि TORs पर उनकी जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की जा रही। सूबाई वज़ीर रईस इमदाद अली पताफी का यह कहना है कि इंतकामी सियासत से बालातर होकर इंसानियत और अवाम की खिदमत उनकी पार्टी का मिशन है। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज रईस इमदाद पताफी ने अपने आबाई शहर टंडवल्लाहियार पहुंचते ही PP के जयालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि वो ज़िला टंडवल्लाहियार के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में PP के जयाले शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहादुर फर्जंद के हाथों को मजबूत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को बता देंगे कि जयाले अभी जिंदा हैं। उनका यह कहना था कि सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाए जाने से सिंध मजीद तरक्की की जानिब गामजन होगा। इस मौके पर PP के ज़िले चेयरमैन समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। टंडवल्लाहियार में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। शहबाज कॉलोनी में बिजली चोरी के इल्जाम में एक दुकान का मीटर काट दिया गया। हेस्को सब डिवीजन नंबर 1 के SDO अब्दुल खालिक ने एक्सियन शाहीन उमर की हदायत पर गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहबाज कॉलोनी में वाक़े आइसक्रीम की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान बिजली चोरी करने के इल्जाम में बिजली का मीटर काट दिया गया। इस मौके पर SDO ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब डिवीजन नंबर 1 की आवाम बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ हमारा साथ दे रही है। बिजली चोरों की निशानदेही करते रहेंगे और बिजली चोर कितने ही बाअसर क्यों ना हो उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि अगर बिजली चोरी कराने में महकमे का कोई मुलाजिम मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर में भुगती बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जे और घरों पर हमला करने वाले 62 अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर प्रेस क्लब के सामने सुई से ताल्लुक रखने वाले भुगती बिरादरी के 62 अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि सुई भुगती के दिनारी कबीले से ताल्लुक रखने वाले 62 शख्स नूर मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया और फिर उनके घरों पर धावा बोल दिया और खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका यह कहना था कि पुलिस मुलजिमान की पुष्टपनाही कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से नोटिस देते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। अब रुक करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। चारसदा और पेशावर में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में 7 इश्तहारियों समेत 67 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर लीं। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में पुलिस और फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्नाइपर, सुरागरिसा कुत्तों की टीमों और खवातीन पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 60 से जायद घरों को चेक किया गया। स्ट्राइक ऑपरेशन में फॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 अफगान बाशिंदों और 2 इश्तहारी मुलजिमान समेत 52 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गई हैं। चारसदा के थाना सिटी की हदूद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 5 इश्तहारी मुलजिमान समेत 15 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। कोयटा में मजीद 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। रमासाल सूबा बलोचिस्तान में कोंगो वायरस से 12 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 24 तक पहुंच चुकी है। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस मुसलसल शहरियों का शिकार करने में मसरूफ है। वायरस के शुबे में अस्पतालों में मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। फातिमा जना जनरल एंड ट्रस्ट अस्पताल में मरीज 2 कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। एक मरीज का ताल्लुक लोरालाई से है, जबकि दूसरा उज़्बेक बाशिंदा है। दोनों मरीजों को बुखार होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें कोंगो की तस्दीक होने के बाद दाखिल कर लिया गया। रमासाल बलोचिस्तान में कोंगो से मुतासरा 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 24 हो गई है।
اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ راستے کے تنازع پر مقامی ذمہ دار نے غریب خاتون کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ خاتون کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال بھی کاٹ دیے۔ خانیوال کے نواحی علاقہ نظام پور میں شہناز بی بی کا مقامی زمیندار حق نواز سے راستے کا تنازع تھا۔ متاثرہ خاتون نے پولیس تھانہ صدر کبیر والا میں درخواستیں بھی دی، جس کی رنجش پر بااثر زمیندار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کے گھر پر دھاوا بول دیا، خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال بھی کاٹ دیے۔ دھمکیاں دیتی ہیں کہ اپنی ان کے درخواست چک، میں آخیا بھی میں نہیں چک دی درخواست، تو سب بندے بھی بڑے سٹے جو کچھ مرضی کیتا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے پھر آ کے میرا منہ باندھ دیتا ہے، میرے وال کاٹ دیتے ہیں، مینوں ماریا کٹیا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے تحفظ فراہم کرنے اور ملزمان کو فی الفور گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناروال کے نالا ڈیک سے ملنے والی اینٹی ٹینک مائن کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ اینٹی ٹینک مائن پھٹنے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ ناروال کے نالا ڈیک ٹیڑا سے اینٹی ٹینک مائن ملنے پر پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے مائن کو قبضے میں لے کر ناکارہ بنا دیا۔ بم ڈسپوزل حکام کے مطابق نالا ڈیک سے ملنے والی مائن بھارتی ساختہ ہے اور اس کے پھٹنے کی صورت میں بڑی تباہی کا خدشہ تھا۔ دوسری جانب مائنز ملنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے نالے سے مائن ملنے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی نالا ڈیک میں شکر گڑھ سے اینٹی ٹینک مائنز برآمد ہو چکی ہیں۔ رحیم یار خان میں اہل علاقہ نے مبینہ پولیس گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے چک 51 میں اہل علاقہ نے لاہور پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ لاہور سے تھانہ کوٹ لکھپت پولیس نے مطلوبہ ملزم کی تلاش میں گھر پر چھاپا مارا، جبکہ مطلوبہ شخص 25 سال پہلے علاقہ چھوڑ چکا ہے۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ پولیس تلاشی کے دوران نقدی، موبائل فون اور زیورات اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ مرد خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ڈی پی او رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور پولیس کی لوٹ مار کے خلاف کارروائی کی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ نیب صدر شخص کو گیپکو کا چیف ایگزیکٹو مقرر کیے جانے کے خلاف سیالکوٹ سرکل میں گیپکو افسران اور ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال اور دفاتر کی تالہ بندی مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے چیف ایگزیکٹو کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسی گیپکو سمیت گیپکو افسران اور ایس ڈی اوز کے دفاتر کی تالہ بندی آج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ اس موقع پر گیپکو ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت نیب شدہ شخص کو گیپکو گجرانوالہ کا چیف ایگزیکٹو مقرر کیا گیا، جس کی وجہ سے سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع کے ہزاروں ملازمین تشویش میں مبتلا ہیں۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ نیب صدر شخص کو گیپکو کا چیف ایگزیکٹو مقرر کرنے کے بعد حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ گیپکو ملازمین کے مطابق چیف ایگزیکٹو کی تبدیلی تک ہڑتال اور دفاتر کی تالہ بندی جاری رہے گی۔ ادھر گیپکو افسران اور ملازمین کی جانب سے ہزاروں سائلین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ مظفر گڑھ میں آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ مظاہرین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور جا کر احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ مظفر گڑھ میں آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پی ایس او انتظامیہ کی جانب سے اور ملتان روڈ پر سینکڑوں ٹینکرز کھڑے کر کے احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے آج 10,000 آئل ٹینکرز لے کر لاہور کی طرف روانہ ہونے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ایس او انتظامیہ ٹھیکیدار کے نام پر 3 سے 4 ہزار روپے بھتہ وصول کرتی ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل انتظامیہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سینکڑوں افراد بے روزگار ہو چکی ہیں۔ مظاہرین نے گرفتار رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔
पाकपतन में वापडा की जानिब से ओवर बिलिंग के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल का यह कहना था कि वापडा की जानिब से ओवर बिलिंग किसानों के लिए वबाले जान बन चुकी है। किसान पहले ही तबाहाल है और अब जायद बिलों की ने कमर तोड़ रखी है। चौधरी रिजवान इकबाल का यह कहना था कि हुकूमत ने ट्यूबवेल के लिए यूनिट के रेट कम करके किसानों को जो रिलीफ दिया है उसमें वापडा अफसरान रुकावट बने हुए हैं। अफसरान अपनी करप्शन छुपाने के लिए किसानों को करोड़ों रुपए जायद बिल भेज रहे हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि जब तक दुरुस्त बिल नहीं भेजे जाते वो बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के ज़िले सदर चौधरी साबिर नियाज और जनरल सेक्रेटरी खान तैयब रजा, सेक्रेटरी इतलात चौधरी मोहम्मद अशरफ और ज़िले के आदत समेत किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिला चकवाल के शहरियों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने वाला वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल की इमाम जगह बना हुआ है। अस्पताल में अमराज कल्ब का शोबा न होने के बायस कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जिला चकवाल के शहरियों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने वाला वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। इंतजामिया की गफलत के बायस अमले का नारवा रवैया भी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जबकि लेबोरेटरी की गैर मियारी रिपोर्ट भी मरीजों की परेशानी में इजाफा कर रही है। उधर अस्पताल में अमराज कल्ब का शोबा न होने की बदौलत कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वक्त न्यूज ने हुकाम वाला की तवज्जो इस जानिब दिलाई तो ज़िली इंतजामिया और सियासतदान हरकत में आ गए। डीसीओ चकवाल महमूद जावेद भट्टी के मुसलसल छापों और अराकीनी असेंबली की दिलचस्पी के बाद अस्पताल के मसाइल में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की निजकारी की खबरों पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नईम अस्कर का ये कहना है कि निजकारी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनका कहना था कि अस्पताल के इंतजामी अमूर पर तवज्जो दी जा रही है, तमाम मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। पाकपतन के वाहिद डायलिसिस सेंटर में बद इंतजामिया अरूज पर पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ के दम फराहमी के बायस मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। पाकपतन का डायलिसिस सेंटर इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ चुका है। चंद अरसा कबल वज़ीर आला पंजाब के फ्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत यहाँ अद्वियात मुफ्त फ्राहम की जाती थीं, लेकिन अब सूरत हाल उसके बरक्स है। डायलिसिस सेंटर में न सिर्फ अद्वियात नायाब हैं बल्कि डॉक्टर और स्टाफ की कमी का भी सामना है। मरीजों का यह कहना है कि एक मरतबा डायलिसिस करवाने पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आता है, जबकि डॉक्टर्स और अमले की अदम मौजूदगी के बायस भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों और लवाहिकीन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सरगोदा में सीवरेज के नाकिस इंतजामात ज़िले इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। जगह जगह खुदाई और गंदगी के ढेर आवाम के लिए मुश्किलात का बायस हैं। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह खुदाई और नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस गटर गंदगी उगल रहे हैं। हर तरफ गंदा पानी खड़ा होने की वजह से अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गंदे पानी से उठने वाला ताफुन सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। शहरियों का यह कहना है कि गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है, जिससे मोहलिक अमराज फैलने का खतरा पैदा हो गया है। उनका यह कहना था कि टीएमए हुक्काम को मुताद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने डीसीओ से इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा किया है। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला बख्शी पार्क में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए टीएमओ के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। इस हवाले से देखते हैं सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। ये मनाजर हैं तोबा टेक सिंह के मोहल्ला बख्शी पार्क के, जहां सीवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल बना दिया है। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा होने लगा। शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुहाल हो गई। तफन और गंदगी के बायस इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है।
इलाका मकीन कहते हैं टीएमए हुकाम को कई बार शिकायत की गई मगर अमला तवज्जो नहीं दे रहा। गरीब होना को गुनाह नहीं है, इन्हां लोगों ने साडा हाल की बनाता। जिद को असी जाने हैं वो सानू कल नू आ जा, असी की करिए। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਗਏ ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਈ ਆਉਂਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। अहले इलाका ने सूरत हाल के खिलाफ बख्शी पार्क से डीसी ऑफिस तक शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। और अब बात करेंगे सियालकोट की। सियालकोट के गांव अदालत गढ़ा के गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल गर्ल्स स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जबकि इंतजामिया ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। सियालकोट के गांव अदालत गढ़ा में 1995 में गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल गर्ल्स स्कूल तामीर किया गया। स्कूल में 550 से ज्यादा तालिबात जेरे तालीम हैं। इलाका मकीनों ने स्कूल के अहाते को फिल्थ डिपो में तब्दील कर रखा है। चारों इतराफ गंदगी के ढेर लगे हैं। इलाके में ताफुन फैल रहा है, जिसके बायस स्कूल के पास से गुजरना भी मुहाल है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का यह कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों और इंतजामिया को दर्जनों बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका यह कहना था कि कूड़े के ढेरों में कीड़े मकोड़ों की भरमार है, लेकिन इस अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और स्कूल की इंतजामिया और तालिबात ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ नुमान फारूक तारर ने सिविल अस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ नुमान फारूक तारर ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शकरगढ़ तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से अस्पताल के अमले के रवैये और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के बारे में पूछा। इस मौके पर मरीजों ने बेहतर तिब्बी सहूलियात की अदम फ्राहमी की शिकायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत जारी की कि अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएं और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। उनका यह कहना था कि सूबे के अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरीजों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शसरा मनसब अली ने पंजाब हुकूमत की हदायत पर वेटरनरी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम कोंगो वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए चलाई जाने वाली स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। वेटरनरी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद मकसूद अहमद ने डॉक्टर शसरा मनसब को कोंगो वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए शुरू की गई खसूसी स्प्रे मुहिम के अहदाफ और मनसूबाबंदी के बारे में आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ईद उल अजहा पर फरोख्त के लिए अफगानिस्तान और बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों से लाए गए जानवरों में कोंगो वायरस की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिनके सद्देबाब के लिए पंजाब भर में खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। मुहिम के दौरान हर गांव और हर शहर में स्प्रे किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुहिम के दौरान मवेशी मंडियों, जानवरों के बाड़ों और हवेलियों में भी स्प्रे किया जा रहा है। इस मौके पर MNA डॉक्टर शसरा मनसब ने कहा कि अमला को ये हदायत दी गई कि वो कोंगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे के साथ साथ भरपूर आगाही मुहिम भी चलाएं। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा का यह कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब के अहम तिजारती शहर चिश्तियां और उसके देहात की पसमानदगी खत्म करने के लिए 3 सालों में 5 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कारकुनों और इलाके के उमायदीन से खिताब में किया। चिश्तियाँ मुस्लिम लीग के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब के अहम तजारती शहर चिश्तियाँ और इसके देहात की पसमानदगी खत्म करने के लिए 3 सालों में 5 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। चनाचा चिश्तियाँ शहर और नवाही कॉलोनियों के लिए सीवरेज मनसूबा, शहर और देहात की कारपेट रोड, बाईपास रोड, तहसील अस्पताल की अपग्रेडेशन, ऑर्थोपेडिक अस्पताल, खसूसी निगहदाश्त यूनिट, वाटर सप्लाई स्कीमें चिश्तियाँ शहर के तमाम गली मोहल्लों में
टफ टाइल, सरकात व नालियों की तमीर के बड़े मनसूबे ज़ेर तमीर हैं और वज़ीर आला के तरीक़ साज इक़दामात की बिना पर चिश्तिया का शुमार पंजाब के खूबसूरत शहरों में शुमार होगा। उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर बल्दिया के कौंसलरों से खिताब करते हुए कहा कि चिश्तिया की तारीख में 31 सालों के दौरान बहुत सियासतदान आए, लेकिन कोई इतना बड़ा तरक्याती पैकेज नहीं ला सका। चिश्तिया के शहरियों, ताजरों और कौंसलरों को चाहिए कि शहर को खूबसूरत बनाने के मनसूबा में भरपूर तावन करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप वक्त के साथ रहिए। सुबह पंजाब से ही कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे। जलालपुर भटिया में मवेशी मंडी तो लग गई, लेकिन ना तो पार्किंग के लिए कोई जगह है और ना ही मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जलालपुर भटिया में मवेशी मंडी सज गई, लेकिन इस मंडी के लिए मखसूस की गई जगह तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसके अलावा पार्किंग के भी खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बायस हाफजाबाद रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। शहरियों को तहफ्फुजात हैं कि यहाँ सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए, इसलिए हर वक्त खतरा मंडलाता रहता है। शहरियों और व्यापारियों ने आला हुकाम से इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान में बकर मंडी सज गई, ताहम कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। ईद कुर्बा करीब आते ही डेरा गाजी खान में जनरल बस स्टैंड के करीब बकर मंडी सज गई। बकर मंडी में कुर्बानी के जानवर तो हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और यही वजह है कि ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे। खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का ये कहना है कि उनके जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 50 से 70% बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि वो जानवर देखकर ही वापस चले जाते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि मंडी कुर्बानी के जानवरों से भरी हुई है, लेकिन खरीदार नहीं है और उन्हें जानवरों का खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। रहीम यार खान में मीडिया हाउसेस पर हमलों के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहीम यार खान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में सियासी जमातों के कारकुन भी शरीक हुए। इस मौके पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सहाफ़ी बिरादरी का यह कहना था कि एक जमात की जानिब से सहाफ़ी बिरादरी को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। इस जमात के कारकुन पाकिस्तान में रहते हैं और उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और बेहुदा जुबान भी इस्तेमाल करते हैं। हम सबको चाहिए कि उनका बाइकआउट करें। सहाफ़ी बिरादरी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मीडिया हाउसेस को मौसर सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि आइंदा ऐसे हमले ना हो सकें। तोबा टेक सिंह प्रेस क्लब के बाहर कराची में मीडिया दफातर पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया। तोबा टेक सिंह कराची में सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस पर MQM की जानब से तशद्दुद और सहाफ़ियों से बदतमीजी करने पर प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मजहमती तहरीरें दर्ज थीं। एहतजाजी रैली में शरीक सहाफ़ियों ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में जबरदस्त नाराबाजी भी की। इस मौका पर सहाफ़ियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मीडिया दफातर और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और शोहदाए पाक आर्मी के लिए खुसूसी दुआ मांगी। कराची में मीडिया हाउसेस पर हमलों के खिलाफ लिया में भी सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में कराची में TV चैनल्स पर MQM की जानिब से हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जिला भर के सहाफ़ियों, वकला, ताजिर हजरात और सिविल सोसाइटी समेत समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया। इस मौके पर शुरका ने मीडिया दफातर और सहाफ़ियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने का भी मुतालिबा किया। इस मौके पर मुकर्रीन का यह कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ दिए जाने वाले बयानात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मुजफ्फर खान सयाल का यह कहना है कि मुस्बत सहाफत और इंतजामिया की पार्टनरशिप मुल्क व कौम के मुफाद में है। हमने मिलकर माशरे को बुराई और करप्शन से पाक करना है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब के नए दफातर के इफ्तिताह के तकरीब से खिताब करते हुए डीसीओ का यह कहना था कि प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद जहीर खान, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख्वाजा मोहम्मद शफीक, शेख सलीम, मंजर सजाद और उनकी टीम ने मुस्बत, म्यारी और तामीरी सहाफत करके ये साबित किया है कि प्रेस क्लब जैसा इदारा दुरुस्त समत पर गामजन है। उन्होंने सहाफती कॉलोनी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सलामत भी मौजूद थे। तकरीब में ओहदेदारों ने प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मुजफ्फर खान सयाल ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सलामत ने खुली कचहरी लगाई। अवाम ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। मंडी बहाउद्दीन की अवाम की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की और पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ और इंसाफ ना मिलने पर तहरीरी दरख्वास्तें दी जा रही हैं, जिन पर डीपीओ ने मौके पर अहकाम जारी किए और फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीपीओ ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और आईजी पंजाब की खुसूसी हदायत पर अवाम को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए जिले के हर थाने में खुली कचहरी लगाई जाएगी। उनका यह कहना था कि पुलिस और अवाम में फासले कम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और जिले से जराइम का खात्मा उनका टारगेट है। झंग में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। जिला भर में 1,70,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और दरख्त लगाए जाएंगे। झंग में हफ्तरोजा मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। डीसीओ ने सर्किट हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीसीओ गाजी अमानुल्लाह का यह कहना था कि शजरकारी मुहिम के दौरान अवाम में शजरकारी की अफादियत का शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर के स्कूलों, कॉलेजेस, दीनी दरसगाहों के तलबा और असातिज़ा की वसासत से तलबा और अवाम में शजरकारी की आफादियत का शऊर बेदार किया जाएगा। डीसीओ ने बताया कि शजरकारी मुहिम के दौरान सरकारी और निजी इदारों और पब्लिक मकामात पर 1,70,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और दरख्त लगाने के अलावा ग्रीन बेल्ट भी बनाए जाएंगे। खोशाब में निजी तंजीम के ज़ेरे निगरानी चलने वाले तालीमी इदारों के असातिज़ा का 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल हो गया। कोर्स की इख्तितामी तकरीब में मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर खोशाब आसमा एजाज चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डीसीओ अब्दुल मजीद सुंबल, असिस्टेंट कमिश्नर कायदाबाद मोहम्मद कलीम समेत तंजीम के अहदेदारों ने भी शरीक हुए और तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम की चीफ एग्जीक्यूटिव महनाज अजीज का यह कहना था कि जिला खोशाब में 25 स्कूल कायम किए गए हैं, जहां 3 से 5 साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरबियती कोर्स के दौरान असातिज़ा को बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में निखार पैदा करने, उन्हें तालीमी इदारों में दोस्ताना माहौल मुहैया करने और तालीम की जानिब राग़िब करने की खुसूसी तरबियत दी गई है। प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ दौरे इफ्तितादा और पसमानदा इलाकों में ख्वानगी का ग्राफ बुलंद होगा, बल्कि कम सिन बच्चों में हसूल तालीम का जज्बा भी पैदा किया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले असातिज़ा में असनाद भी तकसीम की गईं। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।